The history of BSE is the history of India from a capital market perspective. Founded in 1875, BSE and the many men who founded the exchange took the torch forward and built it into the premier institution that it is today. The passing of the Companies Act 1850 paved the way for stock trading in India. But companies were few, and people did not really have large investable funds for trading and stocks. Brokers were saints, and there was no trading hall or stock exchange building, and whatever little trading that took place was carried out in the open under the banyan tree. The American Civil War changed everything. An acute global shortage of cotton forced the mills in Lancashire to source cotton from all over the world, including India. As cotton was exported in large quantities, its price soared. An unusual influx of wealth in the form of bullion amounting to 850 million rupees landed on the beckoning shores of Bombay. Premchand Roychand, who by virtue of being the first Indian broker to read and write English, found himself eminently suited to lead the equities market in Bombay to a new level. He floated or helped float several companies which sought equity investments. Men from all walks of life were participating in the share market. Shri Chunilal Motilal was the first president of BSE. He saw the exchange through its most embryonic phase. Shri Chapurji Paruja succeeded him and was responsible for setting up rules and regulations of the exchange. Shri K.R.P. Shroff rose from being a teacher to the presidentship of the BSE. Shri Feroz G.G. Boy played a stellar role in molding the Bombay Stock Exchange to its present status. He was instrumental in developing the Indian stock market in general and BSE in particular. It was to commemorate his contributions, first as secretary of BSE and later as its chairman, that the present stock exchange building was named after him. BSE has reinvented itself completely in the last couple of years. Professionals now run the exchange, and as per regulatory restrictions, brokers are no longer on the board. Physical trading to screen based trading and now mobile trading, and all have been phenomenal, and in the process, there has been continuum. BSE offers a full bouquet of products including equity, equity derivatives, currency derivatives, interest rate derivatives, debt products, security lending and borrowing platform, IPO, SME platform, mutual funds, ETFs, and offer for sale and offer to buy. With the launch of commodity derivatives, BSE has become India's first universal exchange. BSE also provides a host of services to capital market participants, including risk management, clearing, settlement, market data services, technology, and education. Today, BSE is the fastest exchange in the world and the largest in terms of listed entities. It is the leading currency derivatives exchange in India. The SME platform, BSE SME, is the largest in the country, and so is its mutual fund distribution platform. BSE, experience the new. Yeah, Samir bhai. Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon.
सर राम राम साहब बोलो राजस्थानी रंगीलो राजस्थान है सो कमी राम राम साहब राम राम सर राम राम कम तो a राम warm राम 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 सर राम राम a warm welcome to everyone एक छोटी रिक्वेस्ट है अभी फिलहाल सब लोग अपना आप म्यूट कर दीजिए माइक वरना वो आवाज इको होगी जब बोलेंगे तब माइक को अनम्यूट कर लेना सो वेलकम टू दिस वेबिनार व्हिच इज रंगीलो राजस्थान तो बेसिकली आज की तारीख में रंग है ही नहीं है अपनी दुनिया में जो भी चल रहा है पैंडेमिक सब बेरंग है दुनिया सब घर में बैठ के काम कर रहे हैं और कोई रंग नहीं रहा दुनिया में एज ऑफ नाउ बट राजस्थान इज सपोज टू एंड नोन टू बी रंगीला राजस्थान जहाँ पे खाना अच्छा रिच खाना रिच कल्चर रिच हेरिटेज एंड वहाँ से एक एंटरप्रेन्योर ऐसे निकले जिन्होंने अपना देश और विदेश में नाम कराया है तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मिस्टर आनंद राठी जी एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द पैनलिस्ट एंड ही हैज मेड हिमसेल्फ बिग इन द इंडस्ट्री सो बिफोर वी मूव ऑन मैं चाहूंगा आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा सबका हु आर द पार्ट ऑफ द पैनलिस्ट and then we'll start the conversation. So today we have with us Sri Sameer Patil. Uh, he needs no introduction again. He is also one of the pioneers of MCX, जिन्होंने गोल्ड सिल्वर जो कॉन्ट्रैक्ट MCX में इन्होंने लॉन्च किया था बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस जो पहली बार जुड़ रहे हमारे साथ में उनके लिए आई जस्ट रीड आउट हिज ब्रीफ प्रोफाइल ही इज द चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज he has been leading all business verticals right from the plant for BSE, be it equity derivatives, currency derivatives, mutual fund, insurance. So one man show as of now in BSE, monitoring all businesses, and we are working as a part of his team. He has been spearheading the INX, the GIFT City में जो INX venture है BSE का, he is spearheading that, and he is also on board of India INX Global Access. He has done his MBA in finance and has 21 years of experience in capital market. And as I told you, he was instrumental in launch of flagship contracts of gold, silver, WPI crude, copper at MCX. And a versatile profile, people know him in and out. So he is the man in the face of BSE at the moment of business. We have Sri Anand Rathi ji again, a man who don't need any introduction. He has been pioneer, sir. Welcome, sir. Welcome to the Thank show. राठी जी के बारे में जितना भी मैं बोलूँ कम होगा बेसिकली ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 1966 बैच एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम भी है बट ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ही एंड अस बेसिकली ही कम्स फ्रॉम जोधपुर सो उनके रूट्स जोधपुर में है ही इज फ्रॉम जोधपुर he is currently the chairman of Anand Rathi Group which has various interests into equity mutual fund distribution, insurance distribution to wealth. They are slowly catching up with the wealth setup. बहुत दूर से wealth का उन्होंने खड़ा किया हुआ है setup. We wish him good luck in future में. He can also be one of the great top guys. Thank you. Thank you, sir. Basically, आज की तारीख में देखा जाए तो he is being ranked as basically Anand Rathi as a group has been ranked as the best domestic private bank in India for the consecutive years for 2009 to 2014 by Asia Money Private Banking polls and Best Wealth Manager by CFI UK since 2015. He has also won many awards in the area of equity and commodity broking. They have vested interest in India and international also. India के बाहर भी काफी branches है. Before establishing his own venture, Anand Rathi, Mr. Rathi ji was part of Birla Group. He was with Indian Rayon and heading the division for Indian Rayon as senior president, prior to which he was at a series of roles in Birla Group for over 2 decades. So again, Marwadi ने मारवाड़ी को आगे निकाल दिया है तो वो हिसाब से we support basically we support. So he has been very instrumental in setting up Birla Global Finance and Birla Mutual Fund. आज की तारीख में एक बड़ा brand है. The best part is that he is presently chairman of Brahma Savitri Ved Vidyapit Trust Board in Pushkar. It's a school which is teaching Yajurveda to around 100 students. ये बहुत कम लोग कर पाते हैं ना बेसिकली आज हिंदू संस्कृति के प्रति जो लोगों का हो गया है कि यहाँ पे हमको खाली सब कुछ वेस्टर्न करना है he is the guy who is actually spearheading that activity and he is also basically working for cow protection, Gorakshan. So as I said, socialist, entrepreneur, philanthropist, you name and he is there. Welcome Rathi ji to the show.
Thank you. Thank you, sir. And then I have Shri Rakesh Bhandari. Rakesh Bhandari ji is also a qualified chartered accountant. He is the director of Nirmal Bang Securities. He has done his advanced diploma in risk management from NMIMS, 23 years of experience in capital market. And normally he is looking after every function of Nirmal Bang. So he is the man in Nirmal Bang Securities. So if you want to get in touch with Kishore ji, Rakesh ji के पास जाओगे ना आपका काम. He is Nandi basically of Kishore ji. So right hand man, the trusted most of Nirmal Bang. And इनको ज्यादा जानते हैं हम लोग मैराथन के नाम से. He is marathoner. I am happy to share that he has done 23 full marathon and 100 plus half marathon. So he is the guy. Good job, Rakesh. Then we have Sri Roop Bhutra. Sri Roop Bhutra ji is again a chartered accountant. सब chartered accountant से मिलना हो रहा है. मैं भी chartered accountant sir. So basically, he is now heading the investment service division of Anand Rathi. He is also a rank holder, chartered accountant, and he has been with the group for last 25 years. Capital market experience and a versatile profile. जो राकेश जी निर्मल बंग में है, वो रूप जी आनंद राठी में है. So we have एकदम at par years. Right? Thanks राजेंद्र जी. प्रणाम सभी को. Welcome, welcome. राजेंद्र जी तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों जोधपुर से हैं. ये ऐड कर. सर मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैं जयपुर से हूँ. जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है लालसोट. मैं आता हूँ बट born and brought up in मुंबई. तो मैं मुंबई का नहीं गया हूँ बट मेरे रूट्स अभी भी राजस्थान में है. लालसोट इज माय गांव. Okay. जयपुर से 90 किलोमीटर दूर दौसा डिस्ट्रिक्ट में. Good. Then we have Shri Kanhaiya Lal ji Saraf. A very versatile profile. I know him for last 7 years because I am a Lions Club member and he is a socialist, philanthropist and he has his own you can say एक पकड़ है उनकी मारवाड़ी समाज के ऊपर. इज ऑल्सो अ ट्रस्टी ऑफ मारवाड़ी सम्मेलन जो 106 साल पुरानी संस्था है. उनके ट्रस्टी हैं ये. एंड ही हैज डन लॉट ऑफ चैरिटी वर्क. वी हैव सीन हिम come across during Lions Club activities. He has been always front heading and spear heading all charity purposes. आप देखोगे he is there at this age. It is a commendable job. हम और आप शायद एक बार छोड़ देते हैं कि नहीं, he is always there. So it calls for a round of applause because बहुत कम लोग इस एज में इतना एफर्ट करते हैं. ही इज आल्सो ऑन द सेक्रेटरी ऑफ आवर ढालमिया कॉलेज जो लायंस क्लब को चलाता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज अटैच्ड टू हिम. सो ड्यूरिंग द कोर्स वी कैन डिस्कस. एंड द बेस्ट पार्ट इनके बारे में बता दूं कि शायरी बहुत अच्छा करते हैं मारवाड़ी में. तो ये आपको मारवाड़ी में एंटरटेन भी करेंगे और आपसे एक सवाल भी मारवाड़ी में करेंगे. अभी जैसा आपने कहा कि राजस्थान itself has 57 डायलेक्ट्स. हर 60-75 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है. कोशिश करेंगे कि मारवाड़ी का तड़का भी रखें इसके अंदर बट हिंदी में करें ताकि लोगों को सबको समझ में आए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं. सही बात. With this before I move on to the discussion, I hand over to Shri Samir Patil जी. एक संक्षिप्त में वो आपको वेलकम करेंगे और कुछ दो शब्द कहेंगे बीजे की तरफ से. श्री समीर पाटिल. धन्यवाद राजेंद्र. अभी इस मैं तहे दिल से बीएससी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतने सारे गुणी लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ. सारे मारवाड़ी, मैं मराठी, सारे जोधपुर, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं एमबीए. तो ये बहुत सारे मैं अकेला आई एम द ऑड मैन आउट हो हियर. बट नेवरदलेस बीएससी की वजह से मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भी इस गुणी लोगों के बीच में जगह मिल गई बैठने के लिए और बात करने के लिए. तो मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ राजेंद्र शर्मा और बीएससी का. पहली बात. सेकंड, मैं सबको ये क्योंकि रंगीलो राजस्थान देश में निवेश राजस्थानी सम्मेलन है, मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगा. जितना सीखा हूँ भूल चूक माफ. राम राम सा. राठी जी खम्मा गणी. राम 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 खम्मा गणी. खम्मा गणी. खम्मा गणी साहब बराबर. राकेश भंडारी जी ने मुझे सिखाया है कि चल रहे हो भाइयों. मेरे लिए आज के लिए काफी है इतना. बट नेवरदलेस मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ. मैं स्वागत करता हूँ श्री राठी जी का. ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर. ये कैपिटल मार्केट के एक स्टालवर्ट है और बीएससी से भी जुड़े हुए थे और मतलब इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. और ये आते हैं राजस्थान से, जोधपुर से, तो सारे लोग इनको बहुत अच्छे से, बहुत ही गुणी
मैं एक प्रोफेशनली नहीं, इंसान की तरह से भी इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ, प्रदीप जी को, प्रीति जी को बहुत नजदीक से जानता हूँ, तो बहुत ही गुणी लोग हैं सारे। श्री कन्हैया लाल जी सराफ जी, आपका भी आभार और स्वागत। आपके बारे में शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी से बहुत सुना है और मैं उत्सुक हूँ आपको आगे सुनने के लिए भी। राकेश भंडारी जी ये मेरे पुराने मित्र हैं, और रूप बुत्रा जी, ये दोनों मेरे पुराने मित्र हैं, तो आप दोनों का स्वागत करता हूँ और इस विषय को आगे लेके चलता हूँ। मैंने कोशिश की थी, राजेंद्र शर्मा से कहा था कि थोड़ा सा मारवाड़ी में मैं बात करूंगा, बट मैंने जब कोशिश की तो मैंने समझ में काफी सिमिलैरिटीज है मराठी और मारवाड़ी में, बट जितना ग्रास कर सका उतना ही कर लिया मैंने। बोला आगे इसके आगे हिम्मत नहीं करूंगा, इसके लिए पहले भूल चूक माफ कर दी मैंने। बट नेवरदलेस जो एक चीज मुझे समझ के आई यहाँ पे सब जब राजेंद्र शर्मा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो एक चीज समझ में आई कि सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, जितने भी राजस्थानी भाई आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे है, मैं गुजारिश करता हूँ कि कैपिटल मार्केट्स की नींव इंडिया में, भारत में, देश में बीएससी से शुरू है और बीएससी जो है वो इसकी रूट है। तो मैं यही सबसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे दिन बदलते जा रहे हैं और टाइम्स आर चेंजिंग, अपने मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने रूट्स को मत भूलना, रूट्स को मजबूती से पकड़ के रखना, जो कैपिटल मार्केट्स में बीएसई है। बस यही कहते हुए, यही गुजारिश करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। बीएसई ने काफी सारी चीजें इन दिनों में की है। फास्टेस्ट एक्सचेंज है, 6 माइक्रोसेकेंड्स का उसका रिस्पॉन्स टाइम है। मतलब बहुत सरल सोपी भाषा में अगर मैं कहना चाहूंगा, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो सिस्टम में, जो सिस्टम से सामने से रिस्पॉन्स आता है वो 6 माइक्रोसेकेंड्स का है, बहुत ही फास्ट है और वर्ल्ड फास्टेस्ट एक्सचेंज है बीएसई। 1400 से ज्यादा हमारे मेंबर्स है और इंडिया में सबसे ज्यादा मेंबर्स किसी एक्सचेंज के है तो बीएसई के है। और सारे सेगमेंट्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी, म्यूचुअल फंड, अभी हाल ही में कमोडिटीज भी लॉन्च हुआ है, डेट, करेंसी, सारे चीज। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स, जो गिफ्ट सिटी में 2017 में लॉन्च हुआ था, माननीय मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। लेकिन ट्रेडिंग लॉन्च की, जिस दिन पहला ट्रेड हुआ था वो लॉन्च किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और स्टेट उस वक्त के, वो भी बीकानेर से, राजस्थान से, श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने। तो उन्होंने पहला ट्रेडिंग जो है उन्होंने वहां पे लॉन्च किया था गिफ्ट सिटी आईएनएक्स में। तो ये सारे इंडिया बीएसई और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो गिफ्ट सिटी में है वो भी अभी कार्यरत है। बीएसई में अगर मैं कहना चाहूँ तो इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में अभी हाल ही में हम लोग ने सेंसेक्स 50 मंडे एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। और समझता हूँ कि अभी आने से पहले मैं ड्राफ्ट प्रेस रिलीज इशू कर रहा था, क्योंकि अभी आज हम लोग ने हाईएस्ट टर्नओवर भी उसमें किया है, 38,000 करोड़ से ज्यादा किया है। तो उसकी तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का उसमें सहयोग रहे, आप सहयोग कर ही रहे और भी सहयोग रहे सारे। तो ये एक ही हफ्ते में अभी 2 एक्सपायरीज है, तो काफी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। 2 एक्सपायरीज का 2 इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ता है इस इंस्ट्रूमेंट में। इसके बाद हम लोग करेंसी डेरिवेटिव्स में वी आर मार्केट लीडर्स इन करेंसी डेरिवेटिव्स आल्सो। So BSE is not only a platform where it offers you robust technology, but coupled with cost-effective prices as well. तो अगर आप कंपेयर करो कोई भी एक्सचेंज अक्रॉस दी वर्ल्ड, इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब, आपको पता चलेगा कि बीएसई के जो चार्जेस है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कमोडिटीज भी हम लोग ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में 1 जून 2020 में। देश का और इनफैक्ट इन एंटायर वर्ल्ड में पहली बार ऑप्शंस ऑन गुड्स जो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है वो बीएसई पे लॉन्च हुआ है। और इसके चलते आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक छोटा सा प्रीमियम, जो जैसे आप इंश्योरेंस भरते हो, आप छोटा सा प्रीमियम भर के, इंश्योरेंस भर के आप अपने आपको भाव जोखिम के विरुद्ध सुरक्षित रख सकते हो। और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फिजिकल डिलीवरी भी आप गोल्ड मिनी में ले सकते हो।
सिल्वर केजी में ले सकते हो। अभी आप जैसे देख रहे हो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, 50,000 के पार हो गए, सिल्वर में 60,000 के प्राइसेस हो गए। आपको लगता है कि किलो बार आपको डिलीवरी लेना है, आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो बीएससी में। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट और कहीं भी नहीं है ऑप्शंस ऑन गुड्स में सिल्वर केजी के। प्लस म्यूचुअल फंड्स जो हमारा और एक सेगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। उसमें हम लोग 85 to 90% मार्केट शेयर है उसके अंदर, और जितना भी इनफ्लोज आता है म्यूचुअल फंड में उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% इनफ्लोज जो है बीएससी स्टार एमएफ के थ्रू आता है। तो ये बहुत ही एक सक्षम सेगमेंट बीएससी पे मार्केट लीडर है उसके अंदर। इंश्योरेंस अभी हाल ही में हम लोगों ने एबिक्स के साथ, बीएससी एबिक्स का जो वेंचर है उसमें बीटा लॉन्च हुआ है। अभी हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं। 6,000 से ज्यादा पीओएस है उसमें रजिस्टर्ड। तो ये भी अच्छा एक सेगमेंट हमारे पास में है, जो दूसरी कंपनी जो बीएससी एबिक्स की है। तो ये सारे चीज बीएससी में बहुत एकदम संक्षिप्त में मैं बात कर रहा हूँ। शायद राजेंद्र शर्मा आपको आगे इसमें और ज्ञान देंगे। इंडिया आईएनएक्स जो है 2017 में जो हम लोग ने लॉन्च किया था, वो 22 घंटे की मार्केट है, और सुबह 4:30 से लेकर रात को 2:30 बजे तक ये मार्केट चलती है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप वहां पे जो ट्रेड करते हो वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, मतलब आपने बाय किया सेल किया, आपका मार्क टू मार्केट जो है वो डॉलर्स में होता है। तो इट इज इन ट्रू सेंस अ ग्लोबल एक्सचेंज एट अ ग्लोबल प्लेस। और अभी हाल ही में अब जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, इसके अंदर सारे टैक्सेस जो डोमेस्टिक में चार्जेस लगते हैं आपको, स्टैम्प ड्यूटी, सीटीटी, एसटीटी, इनकम टैक्स, कुछ नहीं लगता है वहां पर। इट इज ऑल वेव्ड आउट, जीरो है चार्जेस। सो इट इज बेसिकली कॉल्ड अ ट्रेडर्स पैराडाइज, भाव और ट्रेडर बस। वहां पे हम लोग 90% मार्केट शेयर है। सेंसेक्स 50 जो यहाँ पे हम लोग ने लॉन्च किया वीकली कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसका आज हाईएस्ट टर्नओवर है 38,000 करोड़ का, वही कॉन्ट्रैक्ट इंडिया आईएनएक्स में हम लोग ने लॉन्च किया है। और वहां पे उसकी जो ट्रेडिंग होती है वो 2.5 to 3 बिलियन डॉलर्स एवरेज डेली होती है। और वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मिला के वो एसजीएक्स निफ्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे भी कई बार उससे भी ज्यादा ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, और एसजीएक्स निफ्टी को भी कई बार उसने पीछे छोड़ दिया है। तो कहने की बात है, ये सिर्फ 3 साल पुराना इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बट इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है, रोबस्टनेस है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, प्लस मार्केट मेकिंग स्कीम्स है, इंसेंटिव्स है ट्रेडिंग के लिए। और हाल ही में जैसे लॉकडाउन चल रहा था मार्च से लेके अभी तक जो लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, बट इससे बीएससी और इंडिया आईएनएक्स को नहीं रोका। हम लोग ने 8 मई को इंडिया आईएनएक्स में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। और आज उसमें भी इंटरनेशनल जोन में जो आईएफएससी में हम लोग वहां पे 90% मार्केट शेयर है, और ऑलमोस्ट नाउ वी आर कैचिंग अप विद डीजीसीएक्स। सीएमई जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सचेंज है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वहां पे भी रुपए डॉलर ट्रेड होता है, उसको भी हम लोग ने पीछे छोड़ दिया है। बट डीजीसीएक्स जो दुबई की एक्सचेंज है, दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज, उसके अभी वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट डीजीसीएक्स एंड एसजीएक्स। और बहुत ही अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च किया तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट ये आया है कि डीजीसीएक्स ने अपने चार्जेस कम किए हैं, और वो भी अभी अपने ट्रेडर्स को इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि जहाँ पे कंपटीशन होगी, टेक्नोलॉजी सही होगी, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग होगी, तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन होगा मेंबर ब्रोकर्स के लिए और उनके क्लाइंट्स के लिए। तो ये सारा चीज बीएससी बहुत इफेक्टिव तरीके से कर रहा है। एक बात मैं बहुत ही अहम चीज कहना चाहूंगा कि जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, काफी बार हम लोग फ्रंट एंड सिस्टम यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, जैसे कोई एक्सचेंज और ब्रोकर को कनेक्ट करता है वो फ्रंट एंड सिस्टम्स है। तो बीएससी अपने सारे मेंबर्स को, 1400 जो मेंबर्स है और उनके सारे क्लाइंट्स को, जो फ्रंट एंड सिस्टम्स है, बोल्ट ऑन वेब, बीएससी यानी सब्सिडीज बोल्ट प्लस एंड बेस्ट, ये जो दो ट्रेडिंग फ्रंट एंड्स है, वो अपने सारे मेंबर्स को और उनके क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, ताकि आप अनइंटरप्टेड सिमलेस पार्टिसिपेट ट्रेडिंग कर सकते हो एक्सचेंज के ऊपर। तो ये भी सुविधा प्राप्त करके दे रही है बीएससी आपको आप सभी के लिए।
तो मैं चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, तो मैं ये सब चीज कहूं, क्योंकि जो बीएससी करता है, कम से कम हम चाहते हैं वो जो नए लोग हैं, जो नई जनता है, जो आज यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए सबको, तो उनको भी ये पता चले। इसके साथ साथ पहली बार बीएससी ने ये किया, कदम उठाया है कि आप जानते हो गोल्ड में डिलीवरी होती है इंडिया में, वो सब लंदन से आती है, एलबीएम में अप्रूव्ड बार्स होती है, बट बीएससी ने पहली बार इंडिया की BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस पे आधारित पहली इंडियन रिफाइनरीज की गाइडलाइंस इश्यू की है गुड डिलीवरी की, और अभी वो बीएससी में भी डिलीवरी हो सकती है। कहने का मतलब, अगर एक इंडियन इंसान और कॉर्पोरेट अपनी रिफाइनरी लगाता है, वो पूरे गाइडलाइंस मैच करता है, तो आप इंडियन रिफाइनरी की गोल्ड और सिल्वर में भी आप डिलीवरी बीएससी एक्सेप्ट करेगी। और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की तरफ ये बहुत ही अहम कदम है, क्योंकि आप सब जानते हो कि गोल्ड इंपोर्ट्स का कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर कितना बड़ा भार है, परिणाम है। तो इस आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो स्टेप्स हम लोग उठा रहे हैं, इसके चलते आगे चल के एकदम से नहीं, बट धीरे 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 जो हमारा इंपोर्ट्स जो है गोल्ड के ऊपर, वो थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा, और काफी इंडियन गोल्ड जो है वो मार्केट में आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, एक्सचेंज में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है गोल्ड, तो लेकिन प्राइस जो है वो वेस्ट में सेट होती है, यूएस और लंदन में। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से गोल्ड निकलेगा, यहाँ से रिफाइन होगा, यहाँ से डिलीवरी होगी इंडियन रिफाइनर्स की, तो कहीं ना कहीं इंडिया से भी प्राइस निकलेगी, और इंडिया इन द नियर फ्यूचर कैन ऑल्सो बी अ प्राइस सेटर फॉर गोल्ड। और बीएससी इसके लिए कार्यरत है, और बहुत सारे जो एसोसिएशंस है उनके साथ में, मिनिस्ट्रीज के साथ में बहुत ही एकदम क्लोज तरीके से इसमें कार्यरत है। तो इसी के साथ में मैं अपना ये संक्षिप्त तो था, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, मैं मानता हूँ। आप सभी का मैं आभार मानता हूँ, और मैं सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का अपना अपना विस्तारित पढ़। बट इससे पहले मैं सबको गुड बाय कहूँ, आई विल नाउ इनवाइट श्री आनंद राठी जी to come and speak about him. Sir, you are a stalwart in the capital markets, and everybody is here to listen to you today. We would also like, you have enhanced, you have a lot of knowledge about the capital markets and so on and so forth. But sir, we would also request you if you could touch upon your personal journey, your life journey, and how from your early days you have come down and built such a large conglomerate, credible conglomerate. Thank you, sir. And I request everybody, and I request Shri Rathi ji, please come forward एक and take मिनट the spotlight. समीर भाई, एक मिनट जाने से पहले, और आनंद जी चालू करें उससे पहले, आपने कमोडिटी इक्विटी सब बताया, लेकिन एक चीज आपने रह गई आपसे, आप लोग इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए बीएससी इंस्टीट्यूट के बारे में आपने नहीं बताया, वो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमने बीएससी इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप करके लास्ट 3 महीने में 500 से ज्यादा ARN होल्डर रजिस्टर्ड को उनको सर्टिफिकेशन कोर्स किया है 10 दिन का। सो ये भी आपका एक अचीवमेंट है। धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू राकेश जी। थैंक यू सर। राठी जी, हाँ नमस्कार भाई, सबने क्षमा गणी। आप सुन पा रहे हैं? यस सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, तो पहली तो हैंग राजस्थानी जी का अपने भेड़ा हुआ है, सब भाई बहना ने मैं प्रणाम करूं। और बहुत अच्छा मौका है कि भाई आज इन मौके माते एक बीएससी भी हमारी, यू नो, बीएससी इज ऑल्सो माय ब्लड, के बीएससी और मिलने राजस्थान रंगीलेर और कार्यक्रम आयोजित किया है, और विशेषकर राजस्थानियों ने बुलाने की कोशिश की है। और हमारे आदरणीय सराफ साहब विराजमान है, हमारा भाई लोग सब, राजेंद्र, राकेश, रूप भाई, समीर जी सब। तो वो एक खुशी रो मौका है कि आज एड़ो एक अवसर दियो मैंने, और मैं इन वास्ते बीएससी रो धन्यवाद करूं, और जिको रंगीलो राजस्थान रो क्यों धन्यवाद करूं। देखो राजस्थान में तो राजस्थान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी है कि हालांकि वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ कुछ उपजता नहीं है, कुछ परंतु वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो खूब सारे देश में विदेशों में व्याप्त हैं। उन्होंने अपनी पूरी ध्यान जमाई है।
भाई और बहनों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मेरे को कई बार सवाल हिंदुस्तान के बाहर पूछते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो एक ही जवाब देता हूं कि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं, यहाँ का जो व्यापारी है, वो बड़ा मजबूत है और वो किसी भी कंडीशन में अच्छा काम करने के लिए तैयार रहता है, कितनी मुश्किलें हों। और मैं कई बार कहता हूं कि दी कंट्री इंडिया इज डेवलपिंग डिस्पाइट द गवर्नमेंट, डिस्पाइट ऑल ब्यूरोक्रेसी। वो है या नहीं है, कितनी कठिनाई आए तो बहुत। और एक नमूना यहाँ के जो व्यापारी हैं, हिंदुस्तान के व्यापारी, बीएससी एक ज्वलंत उदाहरण है। आज से अगर 150 साल पहले किसने सोचा था कि शेयर मार्केट कुछ हो सकता है? एशिया में किसी ने सोचा नहीं होगा, राजस्थान मारवाड़ में तो हिंदुस्तान में भी नहीं सोचा। तो उन लोगों को आज मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैं तो बीएससी से जुड़ा रहा, 2 साल में अध्यक्ष रहा, और ये जो बेल्ट का प्रोग्राम चालू किया उसको चालू करने में मैं भी उस कमेटी का चेयरमैन था। बहुत बढ़िया हासिल जो बीएससी ने किया है टेक्नोलॉजी के मामले में। कहाँ से अपने कहते हैं कि भाई ऊंट से बैठ के सीधा हवाई जहाज में बैठे हैं, जो लीप फ्रॉग जिसको कहते हैं, वो बीएससी ने किया है। जहाँ तक मेरा जो आपने किया भाई, आपको बधाई, मेरी जो आपने इंट्रोडक्शन दिया। देखिए, 2 चीजें लाइफ में जो मैंने सीखी है, जो महत्वपूर्ण है हर एक के लिए, और जो मेरे तो बहुत काम आई, और मैं समझता हूँ हर एक के काम आती है, वो कि एक चीज तो आदमी को की लालसा होना चाहिए। ए पर्सन शुड बी विलिंग टू लर्न एट एनी टाइम, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो उसके बाद प्रोफेशनल काम कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक सीखने का मौका हर क्षण हर दिन आदमी को मिलता है, तो लर्निंग इज की। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं भाई, कि मुझे तो मौका, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूं, तो मैं जब 10 साल का था, 12 साल 11 साल का, तब से मुझे मौका मिला कि मेरी दुकान पे जाके बैठता था और सामान बेचता था। हमारी किराने की दुकान थी, मुझे याद है कि हम एक एक आने की शक्कर बेचते थे, एक एक आने की चाय बेचते थे। उस समय हम कंपटीशन देखते थे, आके लोग कहते थे अरे भाई ये तो आदमी शक्कर कम दाम में भी दे रहा है। तो फिर हम देखते थे, पता करते तो पता लगता अरे यार वो 2 ग्राम 100 ग्राम में 5 ग्राम कम दे रहा है तुमको, भाव तो तुम्हारे जो है। तो एक चीज ये सीखी कि मेहनत, सीखने की लालसा होनी चाहिए, और दूसरी ये कि ईमानदारी से काम करना चाहिए आदमी को एथिक्स जो है लाइफ में, मतलब वो कहते हैं फेयर टू एनीबडी, फेयर टू एवरीबडी, चाहे आपके कस्टमर हैं, चाहे आपके एम्प्लॉय हैं, चाहे आपके एम्प्लॉयर हैं, कोई भी हैं, समाज में फेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। ये 2 चीजों को अगर आदमी साथ लेके चले, और मेरा ये मानना है कि जहां जहां मैंने काम किया मेरी जिंदगी में, बिरला ग्रुप में काम किया, आज बिरला ग्रुप की अगर सीक्रेट कोई मुझे पूछे कि क्या है, तो दोनों चीजें उनमें मिलेगी। बिरला ग्रुप में हर एक सीख, आगे से आगे सीख के आगे बढ़े हैं। जीडी बाबू ने जब पहला प्लांट लगाया था, तो उनके पहले प्लांट का एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रोकर से कोई झूठ ब्रोकिंग करते थे, वहां से लगाया। पर सीखते सीखते जो है कहाँ से कहाँ देश के नंबर 1 कैपिटलिस्ट बन गए। और दूसरा, हमेशा काम जो है बड़ा फेयरनेस से किया। तो दोस्तों, वैसे तो मैं इस बारे में काफी बात कर सकता हूँ, परंतु 2 चीजें महत्वपूर्ण। और तीसरी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हार्ड वर्क। देखो, मेहनत करना जो है, वो आदमी को मेहनत करना खाली आगे भी नहीं बढ़ाता है, मेहनत करना आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोग पूछे अरे भाई ऐसे एक्टिव लेवल आप कैसे रखते हो, एनर्जी लेवल कैसे रखते हो? मैंने कहा भैया काम करो, अगर दिन में 14 घंटा काम करोगे तो एनर्जी लेवल कभी जाएगी नहीं, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी एनर्जी लेवल। शराब साहब को देखो कितने एनर्जेटिक दिख रहे हैं। तो ये राज और बताएंगे। तो ये बात तो हुई मेरे बारे में। और दूसरे आज का आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात कही, तो चूंकि मेरी एक दूसरी मीटिंग है, उसके जाने के पहले 10 मिनट आप अगर इजाजत दें तो उसकी बात करें, क्या राजन जी? जरूर सर, जरूर। हाँ, तो देखिए अभी जो मार्केट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी जब देखिए ये मार्केट पिछले 4 महीने का अगर देखें उदाहरण, तो एक सही मार्केट है कि सेंटीमेंट कैसे मार्केट को इफेक्ट करता है।
ये मार्केट सेंसिटिव मार्केट है। कई बार मुझे लोग पूछते थे कि ये सेंसेक्स नाम क्यों रखा, ये बीएसई का जो इंडेक्स है उसका नाम सेंसेक्स क्यों है। तो मेरे मन में जब पहली बार मैंने कहा साहब दिस इज मोर सेंसिटिव देन सेक्स, इसलिए सेंसेक्स। तो ये बड़ा सेंसिटिव है। आप देखिए, थोड़ा भय आया, जैसे ही एपिडेमिक का भय आया, कोविड का भय आया, पेंडेमिक का भय आया, मार्केट इस तरह गिर गया, देयर वाज नो टुमारो। और मुझे याद है कि उस समय भी जब टीवी में लोग चलते थे, तो मैं तो उस समय टीवी में जानबूझ के, मैं 23 मार्च को याद है, मैं जानबूझ के मैं आया, मैंने सबको कहा अरे यार घबराओ नहीं भाई, ये मार्केट ये सेंसिटिव बिकॉज ऑफ एपिडेमिक है, फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। आज का मार्केट जो है बिल्कुल अच्छा है, आपके बहुत खरीदने के लायक है। परंतु उस समय भी टीवी में ज्यादा लोग यही कह रहे थे, कह रहे नहीं साहब ये तो और डूब जाएगा, अगर 26,000 27,000 सेंसेक्स हुआ और 25,000 चला गया जाएगा, 20,000 चला जाएगा। तो ये एक तो मैं ये सलाह सब इन्वेस्टर्स को दूंगा कि भाई आप इन सेंटिमेंट से मत चलो। आपको अगर इस मार्केट में पैसा कमाना है, और ये भी मानना आज सबको पता है कि सबसे ज्यादा आज आपका जो इनकम है या आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, किस पे ज्यादा है? आज सारी एसेट क्लासेस अगर देख लें तो सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी ने दिया है, इतने साल में दिया है। जब से सेंसेक्स 79 में बना है, आज 40 साल से ज्यादा सेंसेक्स अपने पास है। आप हिस्टोरिकल देख लो, अगर कोई भी 15 साल की आप एवरेज लेंगे 15% का रिटर्न आपको मिलेगा। 15% CAGR, नॉट तो CAGR जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, आज का जबरदस्त इफेक्ट है। तो दोस्तों इस मार्केट में आने के लिए कुछ चीजें मैं आपको ये कहूंगा। देखिए, मार्केट की टाइमिंग किसी के लिए करना बहुत मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि आप जो है हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए, परंतु इक्विटी मार्केट में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा। आपको अफवाहों के चलते, टिप्स के चलते, किसी ने इधर घूमते हुए कह दिया, किसी ने टीवी में कह दिया, दोस्तों उससे मत जाइए। आपको अगर पैसा कमाना है तो पहले खुद, आपका खुद का पैसा है, अपना कन्विक्शन करिए कि मैं क्यों लगा रहा हूं, मेरा को क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, लाइफ में हर काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव अगर आपका ये है कि मुझे 5 साल या उससे अधिक का पैसा मुझे उसमें लगा के रखना है, तो आप 15% के आसपास रिटर्न दे सकता है। अब आप कहेंगे हर साल इतना रिटर्न, संभव नहीं है। वॉलेटाइल मार्केट है, हमेशा ऊपर नीचे होगा। और इसीलिए लोग जो कहते हैं कि हम तो साहब टाइमिंग ऑफ मार्केट करेंगे, कभी संभव नहीं है। पिछले 100 साल की हिस्ट्री उठा के अमेरिका के मार्केट की देख ली, अपने मार्केट की देख लीजिए, टाइमिंग कोई पहले जज नहीं कर सकता कि ये जो है। और होता क्या है कि जो टाइमिंग करने जाते हैं, जैसे मार्केट कम हुआ, जब पहले भी जैसे मान लो 38,000 40,000 41,000 हो गया था सेंसेक्स, तो लोग अगर 30 आया 35 आया, बोले अभी निकल जा, 30 आया अभी निकल जाएंगे, नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे। अब वो लोग आज भी बैठे हैं, 30,000 को लेके बैठे हैं। तो दोस्तों इस मार्केट में सोच समझ के आइए, अच्छी कन्विक्शन से आइए, और उसके लिए या तो आप सलाहकार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, आज के जैसे हेल्थ के लिए सलाहकार चाहिए, वैसे वेल्थ के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी सलाहकार चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट में जितनी जरूरत है एक एक्सपर्ट एडवाइस की, उतनी जरूरत तो है वेल्थ मैनेजमेंट में भी है। वो जमाने चले गए आगे के, अच्छा भाई खरीद लेंगे, हर चीज चल जाएगी, थिंग्स हैव चेंज। तो आई थिंक मार्केट में पैसा कमाने का इक्विटी का बहुत अच्छा मौका है। आप अगर डिसिप्लिन रखें, आप अपना कन्विक्शन रखें। अब आज के मार्केट में लोगों को क्या, हर एक तो पहले ये पूछता साहब, आपको तो सुनने इसलिए आए कि आज क्या करना चाहिए। ओके, अच्छा, कई सवाल पूछते हैं, जब मार्केट नीचे हुआ तो पूछे नीचे कितना जाएगा, अब ऊपर आ रहा है तो पूछे ऊपर कितना जाएगा। मतलब आप देखिए कि कैसे सेंटीमेंट से चल रहा है। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि मार्केट आज उतना ऊपर क्यों आ गया साहब, इकोनॉमी की तो हालत ठीक नहीं है, आज सब फैक्ट्रियां बंद थी, व्यापार बंद थे। हाँ, चालू हुए हैं धीरे धीरे, 60 70 80% पे आए, परंतु हाँ पिछले 4 महीनों में बड़ा खराब इफेक्ट रहा है। इस साल की GDP भी मानना है कि भाई 5-7% नीचे होगी।
फिर भी बोले मार्केट आपका ऊपर क्यों है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम होगी, सबको पता है, फिर भी ऊपर क्यों है। तो देखिए, इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में ये चलता है सेंटिमेंट से और डिमांड सप्लाई, लिक्विडिटी। आज जो मार्केट चल रहा है लिक्विडिटी में चल रहा है, सारे दुनिया में चल रहा है, क्योंकि इतनी पैसा मार्केट में आ रहा है और दूसरे देशों ने इतना पैसा भी रिलीज किया है उनकी बैंकों ने कि पैसा लोगों के पास बहुत आया है। दूसरी तरफ ब्याज की दरें इतनी घट गई हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो इससे बढ़िया टाइम रिस्क लेना क्या क्या है। तो आप आज देख रहे हैं कि मार्केट में नॉर्मली 60% इन्वेस्टमेंट पहले इंस्टीट्यूशंस करती थी, 40% इंडिविजुअल इन्वेस्टर करते थे। आज वो अनुपात उल्टा हो गया। आज 60% से 70% पैसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगा रहा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज मुझे जैसे हर दिन 50,000 से 75,000, 1 लाख नए इन्वेस्टर नए अकाउंट, डीपी अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस मार्केट में आना चाहिए, परंतु ये मान के कि लॉन्ग टर्म में आना है, कम से कम 3 से 5 साल का रुपया लगाना है। और स्टे इन्वेस्टेड का मतलब नहीं कि उसी स्टॉक में रहेंगे। देखिए, जो 2 तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप इंडिविजुअल स्टॉक में लगा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा समय नहीं है, जिनके सलाहकार नहीं है, उनको मैं कहूंगा कि भाई आप ज्यादा म्यूचुअल फंड में लगाएं। थोड़ा बहुत अगर आपको इंडिविजुअल कंपनी के बारे में ज्ञान है, आपका सलाहकार को अच्छी ज्ञान है, आपको बराबर एडवाइस मिल रही है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाइए। आज का मार्केट डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा है, इसलिए हो सकता है पैसा कमाने का मौका ज्यादा, वॉलेटिलिटी उनमें ज्यादा है, इवन इंडेक्स में भी वॉलेटिलिटी है। परंतु आप जब भी कोई चीज में इन्वेस्ट करें, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो एक जो कहलाता है कि भाई आगे फायदे होने की संभावना क्या है, नुकसान होने की संभावना क्या है। पर्टिकुलरली जो ट्रेडर हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आते हैं, कई लोग आते हैं हमको तो 3 दिन में पैसा बनाना है, 3 महीने में बनाना है, 6 महीने में बनाना है। कई लोग 3 घंटे में भी बनाना चाहते हैं। ग्रीड इतनी है, तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि भाई आप जो है रिस्क रिवार्ड जिसमें भी इन्वेस्ट करें, देखिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में या कितना उतार चढ़ाव की संभावना है। आज के मार्केट में चूंकि मार्केट एक साथ 4 महीने में ऑलमोस्ट 40% बढ़ गया है, तो इसलिए नेचुरली जब उस समय मार्केट में हमने सलाह दी थी, मैंने कहा था कि भैया 25-27,000 28,000 का इंडेक्स जरूर लगाओ, बहुत अच्छा मौका है। पर उस समय आदमी सोचता नहीं नीचे आएगा तब लगाएंगे, और नीचे आएगा, उसकी इंतजार करते करते आदमी चूक जाता है। तो आप आज का रिस्क रिवार्ड रेशियो, उस समय रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा था। उस समय मैंने कहा भाई बढ़ने को 25%, घटने को 10%, तो 1:2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ। आज की तारीख में हो सकता है रिस्क रिवार्ड थोड़ा कम है, बढ़ने को 10% हो सकता है, घटने को 20% हो सकता है। तो आप ये सोच समझ के करिए, परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो किसी लेवल पे आएंगे। आप अगर रोज उतार चढ़ाव को नहीं देखें, कई लोगों को, लोग मुझे कहते हैं साहब बड़ी घबराहट होती है, सलाह देता हूँ भैया टीवी मत देखो। टीवी देखोगे तो रोज जो है आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, और नहीं तो आप सलाहकार के जो सलाह दे रहे हैं चलो, कन्विक्शन से चलो, आपका डेफिनेटली मार्केट, इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट मार्केट टुडे, ऑलवेज इट हैज बीन। और पर्टिकुलरली अब चूंकि रियल एस्टेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, अपने सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट में अब इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। पिछले 3-4 सालों में लोगों ने पैसा खोया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके, हार्डली किसी ने बनाया, तो बड़ा लकी होगा। आज इंटरेस्ट रेट इतनी कम हो गई, डेट में लगाने की जगह नहीं है। गोल्ड में बहुत तेजी आई है, पर गोल्ड का एक पिछले 50 साल 100 साल का रिकॉर्ड देख लें कि जो आपका इन्फ्लेशन की रेट है उसके बराबर आपका रिटर्न गोल्ड देता रहेगा। हो सकता 2 साल में, देखिए जो तेजी आई 1 साल में, पहले 5 साल जो है गोल्ड 30,000 के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहा, और जब बढ़ा तो 50,000 करके 1-1.5 साल में पहुंच गया। तो ये उतार चढ़ाव देखिए वॉलेटाइल मार्केट्स में रहेंगे। जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें ये सोच समझ के करिए, जितना लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होगा आपका अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरे बहुत लर्नेड स्पीकर्स बैठे हैं जो आपको और डिटेल में बात करेंगे, मुझे पता है कि आप उन सबको सुनना चाहेंगे। मैंने संक्षिप्त में एक, जो कई लोग जब टिप मांगते हैं, मैं कहा मैं टिप ऐसी दूंगा
अगर उसको आप पालन करोगे तो आप पैसा कमाएंगे। और आप ये डे टू डे टिप में जाएंगे, मेरे पास वो टिप नहीं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक की इसलिए बात भी नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। कोई टीवी कोई भी मुझे पूछ ले, मैंने कहा भी मुझे पता ही नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक का मुझे नहीं पता है। हाँ, एज एन एसेट क्लास, इक्विटी इज ए ग्रेट एसेट क्लास, प्लीज बी देयर। बीएससी इज ए ग्रेट एक्सचेंज, जिसने इतना किया, जहाँ पे दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा स्टॉक्स की लिक्विडिटी कभी नहीं, कई एक्सचेंज में नहीं मिली। आज बीएससी ने वो काम किया तेजी से। मेरी शुभकामनाएं हैं भाई बीएससी के साथ कि हर साल खूब आगे बढ़े। मैं सब शुभकामनाएं, मेरे जितने भाई बहन आए हैं इसको अटेंड कर रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जैसे सामान बरस रहा है, आपके ऊपर भी इक्विटी मार्केट बरसे, आपको खूब कमाई हो, खूब पैसा मिले। आपको बहुत बहुत बधाई और घनी घनी खमा। बड़ी कमाल। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद राठी जी, इट वाज वेरी इंसाइटफुल। एंड एक चीज सीखा, इंटीग्रिटी, honesty and hard work is key to success, and we should follow that. And Ethics. patience, equity, Ethics also. ethics, I miss that. So ये तजुर्बा लेने के लिए हमको, आप जैसे एकदम जो इस लेवल पे बैठे हैं, सीनियर है, बुजुर्ग है, ये हम लोग हमारे अंदर जब इम्बाइब करते हैं तो हम भी उसी लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो आज कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ अक्रॉस राजस्थान और इंडिया में, जहाँ से जो भी मारवाड़ी है या राजस्थानी है या नहीं है, पर उनको एक चीज सीखने मिली कि यू हैव टू हैव पेशेंस, you have to have ethics, integrity and honesty. That's the key to success. Thank you Arathi ji, and before you move out, I know you are very busy, मैं चाहूंगा सराफ जी से, बेसिकली ही इज नोन एज केजी अंकल, हम लोग केजी अंकल मामा जी के नाम से बहुत फेमस है ये सब जगह। तो मैं चाहूंगा ये कुछ 4 लाइन आपके लिए पेश करें बिफोर यू मूव आउट। ओके सर, थैंक यू। सराफ जी, आनंद जी के बारे में क्या आनंद जी के बारे में क्या बोलना है? क्या आनंद जी को सुनना अपने आप में एक उपलब्धि है। आशीर्वाद चाहिए आपका। अरे मामा जी। भाई, आशीर्वाद। आनंद जी को सुनकर अपने आप में एक उपलब्धि है। और जीते रहे अब तक ये दिलदार की तरह, और वाह, पढ़ते रहे लोग इन्हें अखबार की तरह, और जब साथ आ गए तो रहे सारी जिंदगी, आकर के ये गए नई बहार की तरह। वाह तो वाह। आनंद जी राठी का जो अनुभव है, आनंद जी राठी ने सही अर्थों में बताया कि एक मारवाड़ी ग्राहक देख के पुड़िया बांधता है और दिल का दरवाजा भी धीरे धीरे खोलता है। और मैं सबको नमन करना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। और आज की इस विद्वान मंडली में 5 मारवाड़ी हैं और एक समीर पाटिल है, वो महाराष्ट्रियन है। और मुझको ऐसा लगता है उसके भाषण से कि वो भी जन्म से मारवाड़ी नहीं है, लेकिन कर्म से थोड़ा थोड़ा मारवाड़ी हो गया है। कन्हैया जी, वो भी एम है, मारवाड़ी और महाराष्ट्रियन है। मनी फॉर मनी, एम फॉर मनी। और देश के उत्थान में और देश के विकास में, भले वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, राजस्थानियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक है बीएससी के श्री राजेंद्र जी शर्मा, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। और सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने मुझको इस वेबिनार से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि उनके परिचय में बताया गया कि वो डोसा आंचल के बिलोंग करते हैं और मैं फतेहपुर शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ। तो एक राजस्थानी लोकगीत है कि रामगढ़ लूटो फतेहपुर लूटो, सिक्कर की ताड़ी ले आई, मैं तो कोड़ी में रामगढ़ लूट ले आई। राजेंद्र जी शर्मा बोले कि मेरे गांव का नाम नहीं बोला। मैं बोले तेरे गांव में लूटने जैसा क्या है? कुछ लूटने जैसा है ही नहीं तुम्हारे गांव में। लेकिन बीएसई के माध्यम से राजेंद्र जी शर्मा शेयर बाजार से जुड़े हैं। शेयर बाजार वो बाजार है जहां लोग मालामाल हो गए हैं और कंगाल भी हो। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग यही एनालिसिस करते हैं, यही विश्लेषण करते हैं कि त थ द ध न वाले ही लोग शेयर बाजार में प्रॉफिट में रहते हैं। त यानी तारवणी करता है जो जोबर होता है, थ यानी थोड़ा जो लिमिट में करता है, द यानी दलाल यानी जो ब्रोकर होता है, ध यानी धनी जो कंपनी का मालिक होता है, उसको पता ही है कि क्या डिविडेंड आने वाला है और क्या बोनस शेयर आने वाला है। और न यानी नट देवे यानी उसको नुकसान लग जावे तो हाथ ऊंचा कर देवे। तो त थ ध नहीं लोग शेयर बाजार में प्रॉफिट में रहते हैं, मुनाफे में रहते हैं। और मंदिरों में हाथ जोड़े जाते हैं
मस्जिदों में हाथ फैलाए जाते हैं, गुरुद्वारों में हाथ उठाकर अरदास गाए जाते हैं, और चर्च में हाथ दिल पर समाज वो समाज है जहाँ बच्चों को कैसे नोट कमाना उसके संस्कार सिखाए जाते हैं। तो मारवाड़ी समाज जो है वो कमाने के मामले में एक नंबर है, और मारवाड़ी हम केवल धंधा व्यापार नहीं करते हैं, हम अपने साथ भामाशाह का त्याग, पन्नादाई का बलिदान, महाराणा प्रताप की भक्ति, मीराबाई की शक्ति, मीराबाई की भक्ति, महाराणा प्रताप की शक्ति, और अपने साथ जुगाड़ करने की युक्ति तथा नोट कमाने की पूरी शक्ति भी अपने साथ आगे लेकर चलते हैं। मित्रों, ऐसा है कि मैं एक 2 लाइनों में आपको मारवाड़ी के परिचय करा सकता हूं कि मारवाड़ी एक बहुत ऐसी बुद्धिमानी कौम है कि जो कोई भी चीजों में से पैसा कमा सकती है। एक मद्रासी और एक मारवाड़ी के बीच में ऐसा शर्त लग गई कि 10 इडली सांभर पहले कौन खावे। तो मद्रासी ने खाना शुरू किया तो मद्रासी 5 प्लेट फटाफट खा गया। तो मारवाड़ी ने सोचा कि ये मद्रासी तो 5 प्लेट एकदम फटाफट खा गया है, मैं तो 2 प्लेट खा पाया हूँ, तो इसको कुछ न कुछ हराने के लिए कुछ न कुछ युक्ति करनी पड़ेगी। तो उसने उसको मद्रासी को पूछा कि भाई मद्रासी तेरी माँ गुजर गई तो क्या हुआ था? तो बोले कि नहीं सर, क्या हुआ, वो खेत में गई थी, उसको खेत में कांटा लग गया तो पीछे डॉक्टर को दिखाया तो फोड़ा हो गया, पैर में फोड़ा हो गया तो पीछे उसको चीरा दिलाने से भी ठीक नहीं हुआ तो उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हुई, बहुत इलाज कराया लेकिन अंत में मर गई। इतने में मारवाड़ी ने उसको बातों में लगा के 9 प्लेट इडली सांभर खा गया। तो मद्रासी ने सोचा कि मारवाड़ी ने अपने को बातों में लगा के और 9 प्लेट इडली सांभर खा लिया, मेरे को मूर्ख बना दिया। तो उसने मद्रासी ने मारवाड़ी से पूछा कि मारवाड़ी तुम्हारी माँ भी गुजर गई, वो कैसे गुजरी? बोले ऊपर से गिरी और गुजर गई, और इतना करके उसने 10वीं प्लेट खा के शरद जीत ली। तो ये मारवाड़ी की बुद्धि का परिचय है। और मैं अभी भूतड़ा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मार्च में शेयर बाजार के जो सूचकांक था बहुत बुरी तरह से गिर गया था, उसके बाद 50% रिकवर किया है। तो आज की मौजूदा परिस्थिति में हमको शेयर खरीदने चाहिए या होल्ड करके रखने चाहिए या उसको बेच देने चाहिए? भूतड़ा जी और दोनों से मैं सवाल करना चाहूंगा, राकेश जी से और भूतड़ा जी से, दोनों से। सराफ जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और सभी जो राजस्थानी भाई बहन, राजस्थानी सब लोग जो आए हैं उनको मेरा प्रणाम। तो क्वेश्चन रेज किया है सर, बड़ी चीज रेज किया है, 50% मार्केट सबसे पहले तो बढ़ गया है, राइट, और उसके बाद में अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। चीजें जो राठी जी ने बहुत अच्छे से बोल के बताई कि भाई ये शेयर मार्केट अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो शेयर मार्केट ओवरऑल बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और जब अपन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया मारवाड़ी के लिए, तो मैं भी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, जिसमें क्या है कोई मारवाड़ी के साथ सबसे बड़ा चीज ये है कि वो एज ए बिजनेसमैन मारवाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, राइट। और बेसिक चीजें हैं कि जब भी एक मारवाड़ी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी मारवाड़ी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो 3 चीजें सबसे रिक्वायर है। पहला चीज कि कोई बिजनेस करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। दूसरा चीज जो मारवाड़ी की कहावत है कि ऊंची पूंजी कसम खाए, मतलब ऊंची पूंजी है तो काम नहीं हो सकता बिजनेस में, राइट। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस जो आप कर रहे हो उस बिजनेस की आपको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। तो ये 3 चीजों को मैं शेयर मार्केट से लिंक कर रहा हूँ कि जब आप बाजार में पैसा डाल रहे हो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बिजनेस की तरह करो, न कि साइड की चीज मान के, राइट। एक आदमी एफडी में पैसा डाल के बोलता है ठीक है मेरे को फिक्स 5%, आजकल 5-6% की खाली रेट लग गई है, राइट। गोल्ड में जैसे राठी जी ने बताया कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा आपको इन्फ्लेशन है उसके इक्विवेलेंट चलता है, उसको बीट नहीं करता है, पर शेयर मार्केट में चलता है। तो चीजें मैं जैसे मैंने बोला कि पहला आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको बिजनेस मान के यदि आप कर रहे हो, आप स्टॉक की पूरी नॉलेज के साथ कर रहे हो, और यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी की एडवाइस ले रहे हो, क्योंकि बिजनेस कोई भी बगैर पूरी नॉलेज के और कंटिन्यू नॉलेज के नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैंने मेरे बिजनेस को एक बार समझ लिया उसके बाद तो पूरे टाइम चलता रहेगा, तो वो चीज यदि आपने कर ली। और तीसरा आप में धैर्य है रुकने का, क्योंकि आप बिजनेस कभी चालू करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट बेसिस पे जो
एक बार आपने लगा दिया, अब 1 महीने बाद में बोलो मेरे को रिटर्न आया नहीं आया। आज बिजनेस चालू करता है तो आदमी बोलता है मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट होना चाहिए। तो बाजार आज भी अच्छा है। बाजार में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप स्पेसिफिक सेक्टर देखो कि कौन सा सेक्टर बेहतर है, उन सेक्टर में कौन से स्टॉक बेहतर है, क्योंकि हर मार्केट में बेहतर सेक्टर रहते हैं, हर मार्केट में बेहतर स्टॉक होते हैं। और यदि वो चीज को आप ध्यान रखते हुए काम करो, आपको एक सिंपल सा चीज बोलूं, आज भी एक मतलब 2 एक सेक्टर में बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बाद में राकेश जी और ऐड करेंगे उस चीज को। यदि मैं बात करूं फार्मा सेक्टर की बात करूं, फार्मा में स्पेशली एपीआई, तो आज भी सेक्टर चल रहा है और आगे भी उसके चलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बात करने जाऊं आगे आपसे, तो जो ऑटो अपन बोलते हैं ऑटो सेक्टर वीक है, बिल्कुल ऑटो सेक्टर वीक है ऑन ओवरऑल बेसिस, लेकिन ऑटो में भी सेग्रीगेशन करने की जरूरत है। ऑटो में यदि मैं बात करूं, ट्रैक्टर वाला डिवीजन की बात करूं, ऑटो में यदि मैं 2 व्हीलर डिवीजन की बात करूं, तो वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। यदि मैं टेलीकॉम सेक्टर मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर यदि इस टाइम में बोलूं, एक साइड अपन बोलते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम आई, आज अपन सब लोग बोलते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आगे इसका क्या असर होगा, पर एक चीज क्लियर है कि धीरे धीरे करते घर से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और घर से काम करना है तो आज की तारीख में आपको इंटरनेट का फैसिलिटी प्रॉपर वे में चाहिए, और वो चाहिए तो टेलीकॉम कंपनियों के शेयर जो है वो रेगुलर ग्रो होते जा रहे हैं और आगे भी उनके ग्रोथ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरी सलाह यह है कि यस, इस मार्केट से जुड़े हुए रह सकते हैं कंटिन्यू बेसिस पे। मार्केट में अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आपको उसके हिसाब से आपको प्रॉपर सेक्टर एनालाइज करके लेना है, आपको इंडिविजुअली स्टॉक एनालाइज करके लेना है, और जहां पे आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते वहां पे आप एडवाइजर की राय ले सकते हैं। बट यस, ये टाइम है पोर्टफोलियो की रीसप्लिंग करने का, क्योंकि काफी सेक्टर वीक भी है और कुछ सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज यदि करके करें तो मेरे हिसाब से मार्केट आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ऑप्शन मौजूद है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन खत्म नहीं होता है, कोई भी टाइम क्यों ना हो। धन्यवाद जी। हाँ, मैं रूपड़ा जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेरे को कुलचांद जी ने एक मैसेज डाल के पूछा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का उचित समय है कि नहीं है। आपने क्वेश्चन रेज किया सर कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, अगेन मेरा ये बोलना है म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ब्रॉड एक एसेट का नाम है, राइट। अगेन म्यूचुअल फंड में हिंदुस्तान में मतलब इतनी स्कीम है जिसका हिसाब नहीं है, इतने सेक्टर की स्कीम है, प्लस ओवरऑल बेसिस पे भी है। देन अगेन उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों है। नेचुरली अपने मारवाड़ी लोग सब समझते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं समझता है, बट यस, म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम में है आज भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है। करंटली यदि मैं पीई की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में सेंसेक्स का पीई बोल दूं ओवरऑल वो काफी हाई है, 24 से 25 का पीई है। बट दैट डजंट मीन कि जो मैंने अभी बोला कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ आज भी रहेगी, तो आज भी है। लार्ज कैप के सेक्टर में कंपैरेटिवली आज भी सेफ्टी है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत लोग बोल रहे हैं भाई मार्केट बहुत बढ़ गया, जुलाई से सितंबर क्वार्टर में क्या सीन होएगा। ओके, जुलाई से सितंबर में कोई बहुत बड़ा मार्केट गिर सकता है क्या? तो इसमें एक चीज मैं बोलूंगा, यदि कोई पर्सन जिसको मार्केट में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करनी है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि जिसको बहुत ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं और एडवाइजर की राय भी नहीं लेनी हो, तो आज भी वो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि इंडेक्स में एक सबसे बेहतर चीज क्या है कि इंडेक्स में जो खराब स्टॉक होता है वो एग्जिट कर जाता है और अच्छा स्टॉक का एंट्री हो जाता है। तो इंडेक्स की क्वालिटी हमेशा इंश्योर होती है बेहतर तरीके से, और इंडेक्स की क्वालिटी बेहतर होने के कारण आज भी इंडेक्स बेस्ड बहुत सारे फंड है, वो कंटिन्यू बेसिस पे परफॉर्म करते रहते हैं। फॉल आ सकता है मार्केट में, लेकिन कंपेरेटिवली रिस्क कम रहती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज की तारीख में बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, पर अगेंस्ट में भी नहीं है यदि इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो यस, म्यूचुअल फंड राइट है, बट उसमें कौन सा म्यूचुअल फंड का चयन करना है उसके लिए एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। मैं भंडारी जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है बगड़िया जी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आज सोने का भाव 50,000 रुपए हो गया है और चांदी के भाव 61,000 रुपए हो गए हैं, तो क्या ये उचित समय है कि सोने और चांदी में निवेश किया जाए? धन्यवाद शर्मा जी और समीर भाई, आपका आपने दिया मौका। और बाकी देखिए, सोना और चांदी ऐसा है ना, सोना को लगाव हिंदुस्तानियों को बचपन से रहा है, मतलब बच्चे घर में पैदा होता है तब से उसके लिए सोने का अरेंजमेंट करना चालू कर देता है। तो सोने का जो बोलते हैं ना हाथ में पक्का, तो अभी आप देखेंगे सोना बढ़ा क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो सोने का वैल्यू बढ़ रहा है, सोने का रुपए, आप उसका प्राइस मत देखिए, सोने का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड में करेंसी का प्रिंटिंग चालू हो गया है और जिस तरह से पैकेज दिए जा रहे हैं, तो लोगों को अभी करेंसी का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसको क्या चीज को प्रोटेक्ट करेगा,
तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गोल्ड के अलावा कोई पैरिटी नहीं है डॉलर के सामने। तो आज के दिन में सब लोगों को लग रहा है कि गोल्ड ही लेना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जिस डिमांड वर्ल्ड में बढ़ रही है ETF पे जो लोगों का जो इसके थ्रू लेना चाह रहे हैं, तो डिमांड के सामने सप्लाई नहीं है उतनी। अब आप देखेंगे कि ये जो कोविड के चक्कर में साउथ अमेरिका में 400 से ज्यादा खाने हैं जो बंद हो चुकी है अभी, मतलब काम नहीं कर रही है, और डिमांड हो गई है। तो वो जो सप्लाई है वो आपका सप्लाई कर रहा था 7% के करीब में, जो कि एकदम से कम हो गई, और 10% ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस ये ETF में लोगों को अभी सबको सेफ हेवन में जाना है, तो गोल्ड सबसे सेफ हेवन माना जाता है। तो उसके हिसाब से तो एक्चुअल में प्राइस से ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ गया है। अब हिंदुस्तान में शुरू से क्या हुआ कि हाईएस्ट हम लोग, आपको पता है कि इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो खराब हो जाता है, उसकी वजह से हमारा करेंसी का वैल्यू कम होता है, और इनडायरेक्टली वो गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। तो जो आप राठी जी बता के गए कि गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखिए, केवल एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो आपको एसेट क्लास को डिवाइड करके रखना चाहिए ताकि आपका हर तरह से आप मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर सके। और रही बात कौन सा टाइम पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वेरी डिफिकल्ट है, किसी को भी नहीं मालूम है। अगर वो मालूम होगा तो वो टीवी पे और यहाँ पर आके बोलेगा ही नहीं, वो खुद ही कर रहा होता है। सो भगवान के अलावा मुझे लगता है कि कोई दुनिया में है जिसको एग्जैक्ट टाइमिंग पता है। सबसे अच्छा है कि आप रेगुलर रहे, डिसिप्लिन रहे। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है, मैं तो सिर्फ उनको बोलूंगा कि वो एक रेगुलर एक गोल होता है कि भाई मुझे क्यों चाहिए, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर मुझे 3 साल बाद में कोई पैसा चाहिए, 7 साल बाद पैसा चाहिए, 10 साल बाद पैसा चाहिए, मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेटी की शादी के लिए चाहिए, इतने अगर लंबे गोल आपके हैं 20 साल 25 साल के, तो डेफिनेटली आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो आपके हर एसेट क्लास को बीट करने का ताकत रखता है, और उसके लिए रेगुलर करना चाहिए। और SIP सबसे अच्छा मीडियम है, क्योंकि उसमें आपको एकदम ऑटोमेटिकली जो उसको बोलते हैं ना कि नीचे में ज्यादा लेता है और ऊपर में बेच देता है एक तरह से, तो यूनिट आपका उस हिसाब से बाई होता है, तो सबसे अच्छा है। और गोल्ड में भी रेगुलर बेस पे गोल्ड के भी ETF आते हैं, आप रेगुलर बेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका एक अच्छा, जैसे गोल्ड पे अलग अलग जैसे इनोवेशन हो रहे हैं, तो BSE ने एक अच्छा भी इनोवेशन किया है, जो स्टॉक ऑप्शन इन स्टॉक गुड्स वाला ऑप्शन, शायद आई थिंक पहला है हिंदुस्तान में, जिसमें कि 100 ग्राम का गोल्ड है जो आपको ऑप्शंस ले सकते हो। तो एक्चुअल में ज्वेलर्स के लिए तो ये बूम, मतलब एक तरह से ब्लेसिंग है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसा है। आप ऑप्शंस में खरीद लिया, और जो प्राइस है, जो प्राइस सेटल होता है, जो स्पॉट का प्राइस के साथ सेटल होता है, कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जो इतना वैलेटाइल है, तो जो शॉपर्स हैं, जो ज्वेलर्स, तो उनके लिए तो एकदम मतलब प्रोटेक्शन है, एकदम से इंश्योरेंस है, जो कि बहुत ही सस्ता है। और आम आदमी को मेरे को लगता है कि एकदम रेगुलर बेस पे एक छोटा अमाउंट है जो फिक्स कर देना चाहिए, वो लेते रहना चाहिए। सर, मेरे को गुजरात से एक नेमानी परिवार के युवा उद्योगपति ने एक सवाल पूछा है कि युवा वर्ग के लिए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या अवसर है कि जिसमें युवा वर्ग ये इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में जुड़ना चाहता है। रुक जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ राकेश। सो बिजनेस का मतलब आप बोल रहे हैं कि एज ए प्रोफेशन के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वो उद्योगपति है। अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछें कि हिंदुस्तान में आज के दिन में बहुत ही चौंकाने देने वाले आंकड़े हैं ये, कि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस में 1.25 करोड़ इंश्योरेंस एजेंट है। और एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदुस्तान में इंश्योरेंस के नाम पे एंडोमेंट प्लान और सेविंग इन्वेस्टमेंट के प्लान बेचे जाते हैं, जो कि एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ प्रोटेक्शन प्लान बेचने चाहिए। मतलब आप ऐसा हो गया कि आप जूते की दुकान पे जाके किराना खरीद रहे हो। सही बात है। जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट है उसके लिए म्यूचुअल फंड है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे ARN होल्डर, वो 1.25 करोड़ के सामने सिर्फ 1 लाख लोग हैं। तो इतना भयंकर अपॉर्चुनिटी है, और आज के दिन में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बहुत लो है हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा। अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से ये आप जो नए टेक कंपनी आ रही है, फाइनेंशियल टेक, जो ऑनलाइन के थ्रू उनके थ्रू एक्विजिशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफी ये जो
इन्वेस्ट करने की प्रथा है वो चालू हो जाएगी नए युवाओं में। और मुझे लगता है कि उसके लिए आपको जब जैसे ही उनका थोड़ा फंड बड़ा होता है तो उन्हें एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी जो कि उनको तरीके से समझा सके और उनके पोर्टफोलियो को एलोकेशन कर सके, सही टाइम पे उनको एग्जिट दिला सके, सही टाइम पे नई स्कीम में डाला। तो मेरे को लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। बट डेफिनेटली ये थोड़ा कठिन इसलिए भी है क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड में कमीशन जो अपफ्रंट बंद हो गया, ट्रेल कमीशन है, तो आपको 5, 25, 30 हजार रुपए महीना का करने के लिए 5-7 करोड़ का ईएम करना पड़ता है। बट अगर आप तरीके से करते हैं तो सबसे बड़ा ब्यूटी इस बिजनेस का ये है कि जैसे आपका क्लाइंट का वेल्थ बनता है, आपका कमीशन भी बढ़ता जाता है। इंश्योरेंस में फिक्स कमीशन है, इसमें म्यूचुअल फंड में आपको वेरिएबल है। जैसे आपका क्लाइंट का आप धीरे धीरे अपना ईएम बढ़ाते हैं और तो उसके बेस पे आपका इनकम भी बढ़ता जाता है और ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई स्टार्ट करता है 5-7 साल में 1000 SIP का एक ईएम खड़ा कर देता है, मुझे लगता है कि उसको वो कोई भी प्रोफेशन में जाएगा उसको बीट कर सकता है, उसके सैलरी को बीट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टू ऐड समथिंग इंश्योरेंस में आपको पता होगा शायद इंडिया इज हाईली अनइंश्योर्ड। हेलो राकेश जी। जी See, I'll just tell you some stats. India is highly uninsured. आप देखोगे इंडिया में खाली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज 4%, जी जबकि ग्लोबल एवरेज 20% है। तो इंडिया खाली 4% इंश्योर्ड है जबकि ग्लोबल एवरेज 20% है। एंड आप देखोगे ना कि लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट, तो इंडिया इज हैविंग 2.36% मार्केट शेयर इन इंश्योरेंस ग्लोबली विद रिगार्ड्स टू लाइफ इंश्योरेंस। तो बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया में, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ने लॉन्च किया है इंश्योरेंस सेक्टर BSE ने, जहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल्स बन सकते हैं। तो जो भी मेरे को सुन रहे हैं इस वक्त यहाँ से, they can become an insurance agent, they can take an insurance agency, they can sell health, life, general, motor, चारों सेगमेंट के सब कंपनी के प्रोडक्ट बेच सकते हैं वो लोग। हम लोग धीरे धीरे ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। तो अगले 1 साल में BSE IBIX लार्जेस्ट इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और आज की तारीख में मैं राजस्थान का पर्टिकुलरली देखूं कि रंगीलो राजस्थान है, तो राजस्थान आज GDP है राजस्थान का इंडिया में, एंड दे आर एक्चुअली 8th इन रैंक विद रिगार्ड्स टू रैंकिंग पे देखोगे तो 8वां कंट्रीब्यूशन राजस्थान का है। और वहाँ पे कई यंग लोग हैं जिनको अपना करियर स्टार्ट करना है, उनके लिए म्यूचुअल फंड ARN होल्डर बनना या इंश्योरेंस का पॉइंट ऑफ सेल लेना BSE में बहुत फायदे वाला हो सकता है, नया रास्ता खुल सकता है इनका। सर यू कैन टेक ओवर। हाँ, ऐसा है कि सर ये राजस्थानियों का अतीत गौरव में रहा है, वर्तमान सम्मानजनक है और मुझे लगता है ये सब जो विद्वान मंडली यहाँ उपस्थित है हमारे बीच परामर्श देने के लिए, उनको देखते हुए हमारा राजस्थानियों का भविष्य डेफिनेटली, ऐसा कहा जाता है कि आसाम की पहाड़ी पर भी एक मारवाड़ी तकड़िया बाट लेके कुछ दुकानदारी करता हुआ मिलेगा आपको। तो व्यापार उनके रग रग में बसा हुआ है और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ ना पूछे हाथ गाड़ी वहां पूछे मारवाड़ी। तो मारवाड़ियों की पहुंच बहुत सीमित नहीं है, मारवाड़ियों की पहुंच बहुत दूर दूर तक है और पूरे विश्व में मारवाड़ी समाज फैला हुआ है और अपने कार्यक्रमों के द्वारा वो एक अपनी जो सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं पूरे विश्व में। आपको आश्चर्य होगा कि मुझको न्यू जर्सी में मारवाड़ी मिल गया कि जो हम लोग पानी पूरी की दुकान पे उधर एक अड्डा है खाने पीने का, उसमें मेरे को मिल गया। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे वर्ल्ड बैंक के अंदर वो जुड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक मारवाड़ी आज ये पोस्ट पे पहुंचा है। तो ऐसा आप देखेंगे तो विश्व के कई कई इलाकों में मारवाड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। हमें फक्र होता है, हमें गर्व होता है कि हमारा समाज इस गति से आगे बढ़ रहा है और देश की जैसी उन्नति के अंदर मैंने बताया कि मारवाड़ियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है, चाहे वो कोई भी विषय हो। और आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने में, नौकरी देने में मारवाड़ियों का हाथ है, क्योंकि उद्योग कारखाने मैक्सिमम मारवाड़ी चला रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मारवाड़ियों की कोई लॉबी नहीं है। हमारी शुगर लॉबी है, दूसरी कई लॉबियां हैं, लेकिन मारवाड़ी समाज की ऐसी कोई लॉबी नहीं है कि जिनको उचित प्रतिनिधित्व तो उनको मिल सके। तो उसके लिए मारवाड़ी समाज को सब इकट्ठा होके उसके अंदर करना चाहिए। राजस्थानियों की प्राचीनतम प्रतिनिधि संस्था है मारवाड़ी सम्मेलन, जो 106 साल से समाज की सेवा करती आ रही है। मुझे गर्व है कि मैं उसका ट्रस्टी हूँ और उसके द्वारा हम लोग 35 पोस्ट चला रहे हैं, जिसके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को हम लोग आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराते हैं।
तो इसके कारण क्या है, राजस्थानी जहाँ भी जाते हैं वो कमाते हैं, लेकिन खर्च भी करते हैं और सेवा का कार्य भी करते हैं। तो मैं एक बार फिर राजेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर जुड़ने का अवसर प्रदान किया। और राजेंद्र जी कुछ बोलना है थारा बारे में? अच्छो कुछ को नहीं बोलना, कुछ को नहीं बोलना। नहीं। राकेश जी, मैं आपसे पूछूंगा, दोनों जी, राकेश जी, आप मुझे सवाल करना। जो हिसाब से हमने देखा है अकाउंट ओपन हुआ है इस कोविड पीरियड में, 7 लाख 8 लाख अकाउंट हर महीने ओपन हो रहे हैं, और आप निकालोगे एवरेज तो दिन के 25 से 30 हजार अकाउंट, मतलब हर घंटे 1000 से 1200 अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ये जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं ये हमको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? आर वी गेटिंग पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज? ये लोकल जो यहीं पे है टायर 1 सिटी में, मेट्रो सिटीज में ओपन हो रहे हैं या पूरे इंडिया में ओपन हो रहे हैं? आई हैव एक्सेस टू डेटा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आप लोग का एक्सपीरियंस क्या रहा है आपके फर्म्स के अंदर, और वो जो नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो किस एज ब्रैकेट में हो रहे हैं? वो यंग लोग हैं, पुराने लोग हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, और वो ट्रेड क्या करते हैं? क्या वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में करते हैं, क्या वो लोग कमोडिटीज में करते हैं? बिकॉज हर एक को हर चीज का नॉलेज नहीं होता है। तो आप लोग का दोनों का एक्सपीरियंस है, वो एज ए आप लोग अकाउंट खुला होगा, उसका आउटपुट क्या है, और आर वी इन द राइट डायरेक्शन? क्या ये और बढ़ना चाहिए? ठीक है, ऐसा है राजेंद्र जी, जो आपने पॉइंट बोला बहुत राइट पॉइंट बोला। आज की तारीख में करीब करीब अपना यदि मैं बात करूं करंट फाइनेंशियल ईयर में 2020 में पिछले 6 महीने में करीब करीब 50 लाख अकाउंट का एडिशन हुआ, राइट। और ये अपने सबके लिए रियल में एक मतलब बहुत ही अच्छा चीज है कि जिसमें इस वे में जो अकाउंट एडिशन हो रहे हैं इससे 3 बड़े फायदे हो रहे हैं। पहला चीज ये है कंट्री में जो आज का अपना सब्जेक्ट है कि भाई देश में अपना निवेश कैसे आए। आज अपने धीरे धीरे करते सेविंग हर पर्सन के पास में कहीं ना कहीं आज की तारीख में खर्चे की थोड़ी कम प्रवृत्ति हुई है आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोविड। खर्चे का रिडक्शन हो रहा है और आदमी की सेविंग हो रही है, वो सेविंग की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है, और अल्टीमेटली यही सेविंग एक्यूमुलेट होकर कहीं ना कहीं फाइनली इंडस्ट्री में बिजनेस एज के लिए जाती है। तो सबसे पहला अच्छा चीज ये हो रहा है कि भाई जैसे जैसे लोग इस मार्केट से और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सेविंग चैनलाइज होगी टुवर्ड्स इंडस्ट्री, टुवर्ड्स देश के लिए निवेश का कंटिन्यू बेसिस पे ये चीज चालू होएगा। दूसरा चीज ये हो रहा है कि जिस तरीके से ये पेनिट्रेशन हाई हो रहा है रेगुलर बेसिस पे रिटेल का, तो पास्ट में अपनी डिपेंडेंसी मार्केट में जो थी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी एफआईआई पे थी, डीआईआई का था, लेकिन डीआईआई का म्यूचुअल फंड का यदि आप अभी का करंट डेटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो पहले महीने का करीब करीब 8,000 से 10,000 करोड़ का मंथली एडिशनल इनफ्लो आ रहा था, वो जून मंथ में बहुत कम हो गया, 225 करोड़ हो गया। वो लोकल अपना ही पैसा है, मतलब अपने पब्लिक का ही पैसा है कि जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है। बट उसमें सेकंड साइड में ये हुआ कि धीरे धीरे रिटेल का डायरेक्ट इक्विटी साइड पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया। ये मार्केट की जो अभी जो तेजी आई है उसमें रिटेल इन्वेस्टर का जो आम पब्लिक जो ऐड हुई है उनका बहुत बड़ा रोल है, और जो सेविंग चैनल है उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप यदि टोटल टर्नओवर में पास्ट में 50% टर्नओवर होता था, डिलीवरी टर्नओवर की मैं मेनली बात करूं कैश मार्केट की, तो 50% टर्नओवर होता था इंस्टीट्यूशन का, 50% रिटेल और प्रो मिला के होता था। आज की तारीख में इंस्टीट्यूशन का टर्नओवर टोटल मिला के 25 से 30%, एट द मैक्स 35% पे हो गया, और बाकी पूरा का पूरा रिटेल का टर्नओवर हो गया। तो धीरे धीरे जो मार्केट की ये तेजी जो आई है इसमें बकायदा अपने रिटेल वाली पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है, और ये पेनिट्रेशन बढ़ने से धीरे धीरे डिपेंडेंसी अपनी कम होगी और मार्केट में कंपैरेटिवली जो वॉलेटिलिटी है वो एक लेवल पे रिड्यूस होगी। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यदि मैं इसके साथ तीसरा पॉइंट बोलूं तो हिंदुस्तान में टोटल मिला के यदि मैं डीमेट अकाउंट बोल दूं या टोटल मिला के फोलियो बोल दूं, सब मिला के 5 करोड़ के आसपास है। टोटल अपनी पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, उस हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत कम पेनिट्रेशन है यदि अपने डेवलप कंट्री से बात करें। अपना कंट्री नेचुरली डेवलपिंग कंट्री में, तो धीरे धीरे करते ये प्रोग्रेस हो रही है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, इस मार्केट की ओर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला धीरे धीरे करते अपनी आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री जी रेगुलर बात करते हैं वो बढ़ती जाएगी। तो मेरे हिसाब से तीनों ही चीज में इसका एडवांटेज है। बट एट द सेम टाइम न्यू पब्लिक के लिए, जो जितनी न्यू पब्लिक इसमें जुड़ रही है उसमें कंपेरेटिवली यंग एज की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां जैसे राठी जी ने भी बोला और मैंने भी एक चीज बोली, यदि अपन कंपेरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए मनी आए तो ज्यादा फायदा, इन्वेस्टर जिनको शॉर्ट टर्म में मनी चाहिए तो ये तकलीफ है। और इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। राकेश ने एक पहले भी हाईलाइट किया था कि यस बीएससी के साथ में रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा न्यू पब्लिक को भी जो इस मार्केट से जुड़ रही है कि लॉन्ग टर्म के में कैसे वो काम कर सकते हैं।
राकेश। बढ़िया है। सही है। एक्चुअल में इसके अलावा जैसे है ना, आप देखेंगे ना, तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है तो वो डेवलप जो ऑलरेडी कंट्री है उनके जो उन लोगों ने जो वहां पे प्रथाएं चल रही है उसको अडॉप्ट। तो अब जैसे यूएस में वहां पर जो पेंशन फंड है वो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वहाँ के लोग समझते हैं इस चीज को। इसके लिए वहाँ का रिटेल भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, वहाँ डायरेक्ट नहीं होता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड के थ्रू। और अभी वहाँ पे भी रॉबिनहुड जैसे ऑनलाइन वाले आ गए तो उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करता है। सेम चीज अभी हिंदुस्तान में भी एनपीएस के थ्रू जब पेंशन का पैसा है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फिक्स बर्डन हो, तो वो भी मार्केट में जो मार्केट का रिटर्न आएगा उसके हिसाब से देने के लिए। जब आपको पता है कि आपका पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मार्केट में लग रहा है तो आप भी कर सकते हो। और मैं बोलता हूँ यंग जनरेशन के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए था क्योंकि वो घर पे थे और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उनका हाईएस्ट है। और अभी आप देखेंगे कि जैसे हम लोग पहले करीब 45 से 50% तक ऑनलाइन हो रहा था, आज के दिन में 70% हो गया, जिसमें मोर देन 50% मोबाइल के थ्रू हो रहा है। और मोबाइल हैंडसेट और बिकॉज ऑफ दिस लो डेटा कॉस्ट एवरीबडी इज सो हैंडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा मिलेनियल्स जो नए हैं उनको एक और प्लस क्या है कि अभी काफी फ्रीबीज का स्कीम चला रखे सब फिनटेक कंपनी, सब एवरीबडी इज इन एक्विजिशन मोड। तो जितने ज्यादा एक्वायर कर सके उसमें से, क्योंकि एक्वायर करना के बाद में उनको एक्टिव करना और वो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज बहुत मतलब एकदम जिस तरह से एक्वायर होता है सेम वो सारे के सारे एक्टिव नहीं होते हैं। बट लेकिन क्या है कि धीरे धीरे लोग बाग आदत पड़ती जाती है तो उसके बाद में एक बार वो समझ में आ जाता है। तो देखिए ऐसा है ना कि ये रेगुलर करेंगे और यंग लड़कों के लिए सीखने के लिए भी बहुत है। तो काफी लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से अगर करेंगे इक्विटी मार्केट से बेटर कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न कोई क्लास है नहीं, तो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम उनको पूरा समझना चाहिए उस चीज को। अगर वो बंदा एक शर्ट खरीदने के लिए 10 दुकान जाता है, 10 जगह पता करता है, तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए भी सेम उतना ही इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर वो खुद नहीं दे सकता है तो उसको अच्छे एडवाइजर के थ्रू और अच्छा रिसर्च के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बिफोर वी वाइंड अप, मैं चाहूंगा सबके लिए आप 4 लाइन सुना के जाइए, हर एक के लिए जो पैनल में बैठे हैं, श्री समीर पाटिल, श्री राकेश भंडारी और श्री रूप। मुझे छोड़ देना। सबसे पहले मैं कौन बोलेगा? उसके पहले मैं राजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो उन्होंने कार्यक्रम की आधारशिला रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यस मैं इस मंच पे आ सकूं, इतने बड़े मंच पे, और इतने सारे राजस्थानी भाई बहनों से एक साथ जुड़ सकूं। धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद समीर जी। थैंक यू श्री समीर पाटिल। राजेंद्र जी, सभी मारवाड़ियों के लिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम नहीं है जो मारवाड़ियों के लिए हो नामुमकिन। मुंह पे हाथ, कान में उंगली और आंख ढके कहते हैं गांधी जी के बंदती। तो मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट गोज टू श्री समीर पाटिल जी, बिकॉज इन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी है, मारवाड़ी है, डिजिटल प्रोग्राम क्यों नहीं करता। बोला यार करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे करें, मेरे को तो फिगर आउट। बोला मुझे नहीं पता, मुझे प्रोग्राम बनाना चाहिए, मारवाड़ी डायलेक्ट होना चाहिए, मारवाड़ी में बात करना चाहिए, एंजॉय। हम लोग लोकल लैंग्वेज में करते रहते हैं। तो मेरे को ख्याल आया कि अपने को जो 2 ट्रेडिशनल स्पीकर्स हैं, निर्मल आनंद राठी पूरे मारवाड़ी है, और सडनली आई गॉट कनेक्टेड टू सराफ अंकल बिकॉज़ ही इज पार्ट ऑफ मारवाड़ी सम्मेलन। तो एक बन गया था। आई सेड पूरा पैनल रेडी है। ही सेड कर फटाफट कर, आई वांट टू बी पार्ट। एंड आप एक और बात बताऊंगा, ही वाज प्रैक्टिसिंग। तो बोला था ना उन्होंने वो वर्ड्स, उनको इतना एंथुसियाज्म था कि मुझे बोलना है मारवाड़ी में, एंड ही वेलकम देम इन मारवाड़ी। तो ये एक्चुअली पर राजेंद्र जी, गिर के पत्थर गोल हो जाता है, समीर भी मारवाड़ी बोलने लग जाएगा धीरे धीरे, आप देखना। समीर इज ऑलवेज इन इनोवेशन, तो ही इज नोन फॉर इनोवेशन। तो नया नया चीज करने का एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्च किया। बीएससी के अंदर वर्ल्ड में जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इन्होंने लॉन्च किया। ही इज अ इनोवेटिव पर्सन एंड ही कीप्स ऑन इनोवेटिंग। कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, और वो हमारे पीछे डंडा लगाते थे कि कर कर कर। तो मेरे को ये मौका दिया इन्होंने, इसलिए थैंक यू। एंड आप लोग थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट किया, इधर आए, और बाकी देश के मतलब कनेक्ट हुए हैं फेसबुक और वेबएक्स के थ्रू सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट, थैंक्स, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। नाइस मीटिंग एवरीबॉडी।